Myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 10, Working with Table, part 2. In last session, we learned how to create table manually as well as we learn the sorting technique. Now, in this session, we are going to learn controlling data redundancy. Now student, what is the meaning of redundancy? Redundancy, it means repetition of data. So that repetition of data we have to control of the following technique. Now let's see how to control data redundancy. By now you might have become quite familiar with base, right? So let us continue our discussion of designing database for our sample application. We have already designed 4 tables: supplier, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर. स्टूडेंट, अब एक्चुअली डेटा रिडंडेंसी जो है ये टेबल में हम लोग जो रिपीटेशन हो रहा है उसके लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं. जैसे मैंने एक टेबल बनाया था सप्लायर का और एक बनाया था प्रोडक्ट का. प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ने कुछ एंट्री भी किए थी, राइट. सो नाउ लेट अस हैव अ रीलुक एट द टेबल डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटा रिडंडेंसी. Data redundancy is a term used for unnecessary duplication or repetition of data. Data redundancy क्या है? तो ये एक टर्म है. It is used for unnecessary duplication. जो डुप्लीकेट हो रहा है उसको रिमूव करें, रिपीटेशन ऑफ डेटा को रिमूव करें, राइट. जैसे कि we have seen that the customer table has a field called city. Modern electronic store will have many customers that belong to the same city, right? So thus if 100 customer belong to the city called Ahmedabad, then for each of these customer the string Ahmedabad would be repeated. है ना स्टूडेंट. जैसे हम लोग ने भी देखा तो प्रोडक्ट कैटेगरी में सिटी जो है तो वहाँ पे वापी काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो डेटा रिडंडेंसी दस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इज इनएफिशिएंट फॉर सेवरल रीजन. So for example, a change in redundant data require changes at multiple places in a database. और इससे और एक चीज़ क्या हो सकती है कि अगर हम लोग ने कुछ कहीं पे चेंजेस किया तो उसका मल्टीपल प्लेसेस पे डेटाबेस में अफेक्ट ज़रूर होगा. टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू ऑर्गेनाइज द डेटा स्टोर इन द टेबल्स. Database designers attempt to eliminate it as far as possible by using a technique called data normalization. Student, अभी ये जो एलिमिनेट करना है जो भी डेटा हम लोग को, उसके कुछ टेक्निक है. तो ये एलिमिनेट करने की जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेटा नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन यानी क्या? तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सजेस्ट डीकम्पोजिशन ऑफ सिंगल टेबल इनटू मल्टीपल टेबल. Thus creating a parent-child relationship, right student. अभी नॉर्मलाइजेशन यानी क्या कर रहे हैं? हमें जो टेबल हम लोग का बना है जिसमें जो भी चीज़ें रिपीट हो रही है उसको हम लोग को डिवाइड कर देना है, डिकम्पोज कर देना है. तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप क्रिएट होगी उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट-चाइल्ड रिलेशनशिप. Thus, in case of customer table in our sample database, a new table can be created to store information about city. So let us name this table as a city. We are aware that each area within a city has a distinct pin code associated with it, right student. हर एक सिटी का एक यूनिक पिन कोड होगा. एक बार जो सिटी को जो पिन कोड दिया जाता है वो दोबारा सेम पिन कोड हम लोग दूसरे सिटी के लिए यूज नहीं करते. व्हाई? बिकॉज इट इज यूनिक. So a pin code can be used uniquely identify city, right student. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. whenever you are visiting Flipkart or any commercial website like Amazon, Snapdeal, at that time they are asking enter your pin code, area pin code. Why? Because that area pin code is unique and at that time they are checking that is that place where we can send that product or not, right student. For that we have to entering the pin code. So a pin code can be used to uniquely identify city and area within a city. Thus pin code can be used as a primary key. और उसके लिए जो भी पिन कोड रहता है स्टूडेंट उसको हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं. क्यों? बिकॉज पिन कोड जो है वो वापस बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए. तो प्राइमरी की वजह से वो ईच रिकॉर्ड हर एक इसमें सिंगल रहेगा जो रिपीट नहीं होगा, राइट स्टूडेंट. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो टेबल नंबर 10.1 में सिटी टेबल जो दिया है तो एरिया जो दिया है भोपाल
लॉ गार्डन, रस्का, और सिटी नेम है अहमदाबाद और लिमड़ी, तो इसका पिन कोड भी अलग अलग दिया है, राइट। भले अभी अहमदाबाद सिटी नेम 2 बार रिपीट हुआ है, बट उसके अंदर जो एरिया है, सब एरिया, उसका पिन कोड अलग अलग है, राइट स्टूडेंट। सो वी नाउ नीड टू मेक चेंजेस इन द कस्टमर टेबल. We can remove the city field from the customer table. When the data of a new customer is inserted in the customer table, we will use the pin code field to get the information regarding customer city area. Student, अभी यहाँ पे आप देखना तो दो टेबल है हम लोग के पास, एक है हमारा सिटी टेबल, सिटी टेबल में जो फील्ड है वो है पिन कोड, एरिया और सिटी नेम, राइट। और दूसरा जो टेबल है हम लोग का वो है कस्टमर, वो नीचे बनाया, उसके पहले और एक टेबल उन्होंने बनाया स्टेट और कंट्री का, यानी अहमदाबाद जो सिटी है वो कौन से स्टेट में है, तो गुजरात में है, और गुजरात जो स्टेट है वो कौन से कंट्री में है, तो इंडिया में है। तो इस तरीके से ये टोटली सिटी टेबल विथ स्टेट एंड कंट्री यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सिमिलरली द सिटी फील्ड शुड बी रिमूव फ्रॉम द सप्लायर एंड एम्प्लॉय टेबल। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के पास सप्लायर और एम्प्लॉय टेबल था जिसके अंदर हम लोग सिटी का नाम लिखते थे मैन्युअली, राइट, यानी कि सपोज एक टेबल के अंदर अहमदाबाद सिटी का नाम बार बार रिपीट होता था, जो हमें बार बार लिखना पड़ता था। अब हम क्या करेंगे कि हमें सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बदले हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, तो जो सिटी का पिन कोड है सिर्फ वो पिन कोड को हमें लिखना है, पिन कोड के थ्रू सिटी पता चलेगी, स्टेट पता चलेगा और कंट्री भी पता चलेगी। So now if we are given a pin code, the information pertaining to the location of a customer can be searched from city table, but you can observe that above design city table contain same flow called data redundancy, right student। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा रिडेंडेंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिपीटेशन हो रहा है एक एक सिटी का नाम बार बार, वो अवॉइड हो जाएगा टोटल। यहाँ पे सिटी भले रिपीट हो रही है, एरिया देखना, एरिया आपको यूनिक मिलेगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ द पिन कोड। So here same city and same gets repeated multiple times. To avoid data redundancy, again city table has to be decomposed into multiple table. In place of the field state name, a field state ID should be stored in place of the field, and country name of field country ID should be stored. यहाँ पे जो गुजरात रिपीट हो रहा है या इंडिया रिपीट हो रहा है, तो इसका हम लोग वापस स्टेट आईडी और कंट्री आईडी बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बार बार गुजरात लिखने की जो टर्न आ रहा है हमारा, यहाँ गुजरात लिख रहे हैं बार बार, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, इसके बदले हम लोग सिर्फ स्टेट आईडी लिख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर कंट्री आईडी है हम लोग क्या, तो इंडिया लिखने का बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, वो रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम लोग कंट्री का एक अलग टेबल बनाएंगे, स्टेट का एक अलग टेबल बनाएंगे और सिटी का भी एक अलग टेबल बनाएंगे, राइट। सो न्यू टेबल दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट एंड कंट्री शुड बी क्रिएटेड। सो हियर you can see that there are total number of tables are 3, country, state and city। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले कंट्री आईडी आपकी प्राइमरी की रहेगी, स्टेट आईडी आपकी प्राइमरी की रहेगी, और सिटी आईडी यानी उसके अंदर जो पिन कोड है वो आपका प्राइमरी की रहेगा। तो जब भी स्टेट के अंदर हमें कंट्री आईडी यूज करनी होगी, तो यहाँ पे जो फील्ड आईडी, कंट्री आईडी जो प्राइमरी की है, ये दूसरे टेबल में एज अ वर्क करेगी फॉरेन की। वाई फॉरेन की का वर्क करेगी, बिकॉज फॉरेन की कैन रिपीट मल्टीपल टाइम्स, राइट। कंट्री आईडी बार बार रिपीट हो सकता है, बट जब भी प्राइमरी की के वर्क कंट्री आईडी बार बार रिपीट नहीं होगा, बट फॉरेन की में ये रिपीट होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग बोलेंगे कि स्टेट आईडी सिटी टेबल के अंदर फॉरेन की रहेगा, वाई, बिकॉज स्टेट आईडी एज अ फॉरेन की सिटी टेबल के अंदर रिपीट हो सकती है बार बार, बट खुद जो स्टेट टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की होने की वजह से वहाँ पे वो यूनिक आइडेंटिटी रहेगी, राइट। सो हियर वी हैव असाइन कंट्री आईडी, स्टेट आईडी एंड पिन कोड फील्ड एज अ प्राइमरी की ऑफ अ कंट्री, स्टेट एंड सिटी टेबल respectively. So as seen in figure 10.5, now city, state and country table are related with each other. Also as the pin code would be one of the field in customer. So employee and supplier table, these tables are related with the city table. The table which contain primary key is known as master table. स्टूडेंट ये सेंटेंस याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मास्टर टेबल यानी क्या, तो जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसको हम लोग मास्टर टेबल बोलते हैं, ओके। सो एज डिस्कस अर्लियर, टू टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर यूजिंग अ कॉमन फील्ड। इन above example, the state and country table is related using country ID field. The field country ID act as a primary key in the country table, right.
the field country ID in the state table, thus borrow the value from the field country ID in the country table. The country ID field in the state table is known as foreign key. स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कंट्री टेबल के अंदर कंट्री आईडी है तो वहाँ पे वो वर्क करे एज अ प्राइमरी की, बट वही चीज़ हम लोग जब भी रेफरेंस देते हैं, वैल्यू बोरो करते हैं कंट्री टेबल्स कंट्री आईडी की स्टेट टेबल में, तो उस वक्त आपका जो कंट्री आईडी है वो रहेगा आपका फॉरेन की. फॉरेन की का यहाँ पे डेफिनेशन दिया, हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यानी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. फॉरेन की यानी क्या स्टूडेंट? सो फॉरेन की कैन बी डिफाइंड एज अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड हुज वैल्यूज आर बोरो फ्रॉम अनदर टेबल, यानी जिसके अंदर प्राइमरी की करके जो वर्क कर रहा है प्रीवियस टेबल में या मास्टर टेबल में, वहां से वो वैल्यू बोरो करेंगे और सेकंड अनदर टेबल में यूज करेंगे, राइट? तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन की. व्हेन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड इट इज नोन एज कंपोजिट फॉरेन की. अब स्टूडेंट अगर एक ही टेबल के अंदर एक से ज़्यादा बार हम लोग अगर प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन ला रहे हैं, यानी मान लो कि एक टेबल के अंदर हमारा स्टेट आईडी है, कंट्री आईडी भी है और पिन कोड भी है, तो हर एक ही टेबल में ये सारे फील्ड हमें लोग को मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फॉरेन की. एक से ज़्यादा फॉरेन की एक ही टेबल के अंदर है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंपोजिट फॉरेन की. सो व्हेन अ मास्टर टेबल हैज कंपोजिट प्राइमरी की, टेबल रिलेटेड विद इट ऑल होल्ड कंपोजिट फॉरेन की, एंड फॉरेन की फील्ड कैन नॉट कंटेन अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन इट्स रिलेटेड प्राइमरी की फील्ड. फॉरेन की खुद की वैल्यू कुछ नहीं होती, वो जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, जो भी वैल्यू वो बोरो करता है, वो प्राइमरी की के थ्रू ही बोरो कर सकता है, राइट स्टूडेंट? सो हियर नाउ इफ यू लुक अ प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड मोबाइल और कैमरा वुड बी स्टोर्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट? Thus a separate table named product category should be created. So each product category now could be assigned a unique number. This unique number can then be used to identify the category of a product. यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको ये प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे देखना, तो कंट्री आईडी दिया है, स्टेट आईडी दिया है. अब यहाँ पे दिया एक्सप्लेन भी किया गया है कि कंट्री आईडी रेफरेंस इन कंट्री टेबल, स्टेट आईडी कहाँ से आ रहा है, तो स्टेट टेबल से आ रहा है. पिन कोड कहाँ से आ रहा है, तो सिटी टेबल से आ रहा है. फिर कस्टमर कोड, एम्प्लॉय कोड, ये कस्टमर, यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक है. कस्टमर कोड आएगा आपके कस्टमर टेबल से, एम्प्लॉय कोड आएगा आपके एम्प्लॉय टेबल से, उसके बाद कैटेगरी कोड और प्रोडक्ट कोड, राइट स्टूडेंट? सो दिस वे you have to create this table. If you have open office application, then practice at your home. If not available, then download from the internet, because open office is a open source software, so you can download from Google directly. Still if you're not able to download, you can ask me on my WhatsApp number, and next lecture we will start the topic composite primary key. So thank you students, have a good day.